چلتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں، تاریخ الادب عربی پڑھ لیتے ہیں، جو ابھی چونکہ ایگزام ہونے والا ہے تو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ عرب کے بارے میں سب سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ العرب ینتمی الی ای نوع من القومیات، ٹھیک ہے۔ عرب جو ہے کیا ہے؟ جیسے سارے ہیں نا، سامی ہوتا ہے، آرامی ہوتا ہے، یہ سارے وہ ہیں قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرب کا تعلق کس قوم سے ہے؟ تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ عرب جو ہے سامی ہیں، ٹھیک ہے۔ سامی کا مطلب یہ ہوا کہ سام بن نوح کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے عرب کو کہ عرب جو ہے سامی قوم ہے، سامی قوم۔ ارامی کیا کہتے ہیں، آریائی قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سامی قوم ہے نا، یہ بہت سارے ہیں، جیسے کہ بابلی ہیں، آشوری ہیں، عبرانی ہیں، فینقی، آرامی ہیں، یہ سب کے سب سامی قوم ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے عرب۔ عرب کیا ہے؟ سامی قوم ہے۔ بس اتنی چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے بہت اچھے سے۔ اب آگے چل کے بات کریں عرب کی، تو عرب جو سامی قوم ہے نا، سامی قوم، تو یہ لوگ ایک جگہ کہیں رہتے تھے، وہاں سے پھر یہ لوگ الگ الگ علاقے میں چلے گئے۔ اب کون کس علاقے میں گیا اس سے ہمیں اپنی بحث نہیں کرنی ہے، یہ بہت ڈیٹا ہے، اور جب انسان کوئی ریسرچ کرتا ہے تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے صرف عرب کی۔ عرب جو ہے یہ الجزیرۃ العربیہ میں آ کر رکے۔ جیسے عرب سامی قوم ہے، جو سامی قوم کے بہت سارے برانچز تھے، آرامی، کنانی، عبرانی، تو کون کہاں گئے؟ وہ سب کو رہنے دیں۔ عرب جو ہے الجزیرۃ العربیہ میں آ کر کے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے اہم قول ہے جزیرۃ العربیہ۔ اور عرب کی جو ہے دو قوم ہو گئی، عرب جو تھے اس کے دو قوم ہو گئے، ایک تھا عرب قحطانی، ایک تھا عرب عدنانی، ٹھیک ہے۔ عرب قحطانی، ایک عرب عدنانی۔ جیسے عرب تھا تو عرب عرب اپنے اس حساب سے کہ نسل کے حساب سے، ٹھیک ہے، وہ دو قوم ہو گئی، قحطانی عدنانی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو ان کے بہت سارے، ایک کوئی جو ہے ہاشمی ہیں، کوئی جو ہے بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح سے۔ ایسے ہی عرب کا بھی یہ معاملہ تھا پہلے کہ دو مین اہم قوم برانچ تھا، ایک تھا قحطانی، ایک تھا عدنانی۔ اب بات کرنا قحطانی کی، تو قحطانی جو ہے یہ یمن میں رہتے تھے۔ یونٹ وہ پڑھا رہے ہیں تاریخ الادب العربی والا، تو آج ہم لوگ العصر الجاہلی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے بارے میں آپ کو سوال یہ کیا جائے گا کہ عرب جو قحطانی تھا وہ کہاں رہتے تھے، کس علاقہ میں رہتے تھے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ یمن میں رہتے تھے، اور یمن میں اس کی بہت بڑی ایک تہذیب تھی قحطانیوں کی۔ قحطانی جیسے نام آئے تو آپ کا ذہن یہ آنا چاہیے کہ وہ یمن میں رہتے تھے قحطانی۔ اب پھر اس قحطانی سے جو ہے بہت سارے قبائل نکلے، تو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان قبائل کے نام یہ سب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے بھی کہ عرب جو قحطانی تھے وہ لوگ یمن میں رہتے تھے، اور ان کی جو تہذیب تھی نا قحطانی کی، وہ بہت ہی ڈیولپ تہذیب تھی قحطانی کی۔ ان کی باضابطہ ایک حکومت تھی، ساری چیزیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا جو عدنانی تھے، عدنانی کی کیا تہذیب تھی، کیسے رہتے تھے، وہ آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے۔ تو ہاں، اگر عدنانی کی بات کریں تو یہ لوگ حجاز میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، عدنانی حجاز میں رہتے تھے۔ اور عدنانی کی خاص بات یہ تھے کہ عدنانی لوگوں کا جو معاملہ تھا، ان کے پاس یا قحطانی کی طرف بہت ہی ڈیولپ تہذیب نہیں تھی، بہت ہی ترقی یافتہ۔ اب یہ لوگ خیمہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے، مطلب یہ کہ دیہاتی زندگی یہ لوگ گزارتے تھے عدنانی۔ اور عدنانی کہاں رہتے تھے؟ حجاز میں۔ آپ کو اس میں سوال اس طرح آ سکتا ہے، القحطانیون کانوا یسکنون، قحطانی لوگ رہتے تھے کہاں؟ الحجاز الیمن، تو آپ یمن بتائیں گے۔ اور پھر سوال یہ آئے گا کہ
الادنانیون کانوا یسکنون، ادنانی لوگ رہتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے الحجاز. ٹھیک ہے، یہ دونوں اہم پوائنٹ یاد رکھیں. اسی کے بیس پہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اسی پر بیسڈ ہوگی، وہ ساری باتیں آگے. ادنانی حجاز میں اور قحطانی یمن میں رہتے تھے، یہ بات یاد رکھیں. آگے اسی پہ بیسڈ بات. اب سوال یہ آئے گا، ایک سوال کہ المؤرخون یوزعون العرب الى کم طبقہ، کہ مورخین جو ہے عرب کو کتنے طبقات میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو عرب کو جو ہے مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں: بائدہ، عرب عاربہ، ایک عرب مستعربہ. ٹھیک ہے، عرب مستعربہ. ٹھیک، تو عرب بائدہ کا کیا مطلب ہے؟ تو عرب بائدہ کا مطلب ہوتا ہے باد یبیدو، بیدن کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، یعنی بالکل ختم ہو جانا. تو عرب بائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب کہ جن کے نام و نشانات مٹ گئے، ان کے آثار اور نہ اس کی نقوش ہمارے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور تاریخ میں اس سلسلے میں دھندلی سے ایک تصویر ہے. تو عرب بائدہ کے جو مشہور قبائل ہیں وہ عاد، تمود، قسم، جدیس، یہ سب ہیں بس. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ یاد رکھیں گے عرب بائدہ سے کیا مراد ہے. العرب الذین اندرست اخبارهم وانمحت آثارهم یقال لهم، وہ عرب جن کے اخبار بالکل مٹ گئے اور نقوش بالکل مٹ گئے. ولم يحفظ التاریخ الا صفحات مشوہات، اور تاریخ میں ان کے صرف اور صرف بہت ہی ایک دھندلی سی تصویر ہے. تو اس عرب کو کیا بولیں گے؟ اس طرح سوال آئے گا، آپ بتائیں گے عرب بائدہ. اور سوال پھر یہ آئے گا کہ من اشہر قبائل العرب البائدہ، عرب بائدہ کے جو مشہور قبیلے ہیں کون کون ہیں؟ عاد، ثمود، قسم، جدیس. ان سب کے ہمیں صرف نام یاد ہیں اور ان کے بارے میں ڈیٹیل تاریخ میں نہیں ملتی ہے، تو اس وجہ سے پیدا ہو گیا. اوکے، کلیئر ہو رہا ہے؟ جی سر. اوکے. اور عرب کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ ہے عرب العاربہ. ٹھیک ہے، عرب العاربہ. تو عرب العاربہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ سیدھے سے اس کے بارے میں یاد رکھیں. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ قحطانی، تو قحطانی کا مطلب قحطانی کہاں رہتے تھے؟ یمن میں رہتے تھے. تو اب سیدھا سے یہ سمجھ لیں کہ عرب عربہ کا مطلب ہے کہ وہ عرب جو کہ یمن کی طرف منسوب ہیں، اور انہیں کو قحطانی بھی بولتے ہیں. عرب العربہ ہی کا دوسرا نام قحطانی ہے. ٹھیک. اور پھر عرب العربہ کی بہت ساری ان کے قبائل ہیں، برانچز ہیں، جیسے کہ قضاعہ ہے، سکاسک ہے، کہلان ہے، ہمدان، طے، کندہ، لخم، یہ سب عرب العاربہ کے قبائل ہیں. تو عرب العاربہ کے بارے میں آپ سیدھا سے یاد رکھیں کہ عرب عاربہ وہ عرب ہیں جو کہ یمنی ہیں اور وہ یعرب بن قحطان کی طرف منسوب ہیں، یعنی کہ قحطانی ہی کو بول سکتے ہیں کہ یہ عرب العاربہ ہیں. اب یہ باتیں ہوں گے. اب بات کریں العرب المستعربہ کس کو بولیں گے. دیکھیے ایک ورڈ آپ سمجھیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. استعرب یستعرب استعراب، باب استفعال سے ہے. عرب بننا، یعنی کہ عرب تھا نہیں، آ کر کے عرب بن گیا، تو اس کو بولتے ہیں استعراب. عرب مستعربہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ آ کر کے عرب بن گئے، عربی بولنے لگے. ٹھیک ہے، تو وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو کہ حجاز میں آ کر کے رکے، اور انہی کو وہ بھی بولتے ہیں العرب الادنانی. العرب الادنانی ہی کو عرب مستعربہ بھی بولتے ہیں، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں جو کہ حجاز میں آ کر کے رکے. ٹھیک ہے، العرب المستعربہ. آئیے آگے میں بتاتا ہوں اہم چیز. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے حجاز میں آ کر کے رکے. وہ جرہم جو قبیلہ تھا، جرہم بادشاہ،
वहां पे शादी ब्याह किया, तो वहीं से जो नसब का एक सिलसिला चला, तो उसी को कहा गया अल अरब अल मुस्तारबा। और उनमें से जो मशहूर इंसान रहे हैं जिनको जाना जाता है वो हैं अदनान। तो इसी वजह से अल अरब अल मुस्तारबा को हम अदनानी भी बोल सकते हैं। ठीक। अब अगर सर बात इसमें करें इसकी किसमें अरब के जो मशहूर मौरखीन अरब की 3 तबके बोलते हैं, उसमें से एक नंबर का और एक बार बोलेंगे। मौरखीन अरब के 3 तबके हैं, उनमें से एक नंबर और एक बार बोलेंगे। मैं समझ तो हम समझ लेते हैं अपने। जी, तो मुअर्रिखीन अरब जो हैं वो अरब की कितनी किस्में करते हैं? 3 किस्में। अरब की 3 मुअर्रिखीन कहते हैं कि अरब के 3 तबकात हैं। ओके, अरब की 3 तबकात है। अरब बाइदा, अरब बाइदा, ठीक है। बाइदा का मतलब क्या होता है? बाद भी तो बैदा मतलब होता है हलाक हो जाना, मिट जाना। तो अरब बाइदा का सीधा सा मतलब ये होगा कि ये वो अरब हैं, इससे मुराद वो अरब है जो के मिट गए, जिनके निशानात और उनके नुकूश हमारे पास नहीं रहे। बस हल्का फुल्का बस हम उनके नाम के बारे में जानते हैं, जैसे कुरान में कुछ तज़किरा आ गया कुछ अरब बाइदा के कबाइल का, जैसे कि उनमें आता है आद, समूद, तस्म, जदीस, ये सब अल अरब अल बाइदा हैं। ठीक है। अब दूसरी जो किस्म है वो है अल अरब अल आरिबा। अल अरब अल आरिबा, तो अल अरब अल आरिबा का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं कि अल कहतानियून। ठीक है, अल कहतानियून को हम अल अरब अल आरिबा भी कह सकते हैं। ओके, अब ये ध्यान में रखिएगा, अल कहतानियून को हम अल अरब अल आरिबा भी कह सकते हैं। तो अरब आरिबा से क्या मुराद है? अरबुन आरिबा दूसरी किस्म। इससे मुराद हैं वो अरब जो कि यमन से जिनका ताल्लुक था। ठीक है, जिनका ताल्लुक यमन से था और उन्हीं को, और उनका ताल्लुक यारूब बिन कहतान से था, इसी वजह से उनका दूसरा नाम कहतानी भी है अरब अल आरिबा का। अब बाकी इसके जो जो कबाइल हैं वो बहुत सारे कबाइल से हैं, उसकी उतनी जरूरत भी नहीं है। और तीसरी जो किस्म है वो है अरब मुस्तारिबा, अरबुल मुस्तारिबा। तो अल अरबुल मुस्तारिबा क्या है? अल अरबुल मुस्तारिबा का सीधा सा मतलब ये समझें कि ये जो अरब थे ये हिजाज में रहने वाले हैं, जिनका ताल्लुक हिजाज से था। और ये दर हकीकत में ये आए थे बाहर से, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। वो हिजाज में आकर के बसे और जो जुरहुम का कबीला था उनने शादी ब्याह किया, तो उन्हीं को कहा गया अरब मुस्तारिबा। अरब मुस्तारिबा ही का एक दूसरा नाम है अदनानी। ठीक है, अदनानी, इनका ताल्लुक अदनान से जाकर मिलता है, तो इसी का नाम है अदनानी भी इसको बोल सकते हैं, अरब मुस्तारिबा को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी किससे है? अरब मुस्तारिबा ही से है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि नो? बताएं। और दूसरी चीज ये कि अरबी जबान के फरोग में, अरबी जबान के इतना वो आगे करने में जो अहम रोल रहा है वो इसी का रहा है अल अरब अल मुस्तारिबा का। अल अरब अल मुस्तारिबा ही का अहम रोल है अरबी जबान की इस करने में, और इन्हीं के नुक़ुश हमारे पास सब कुछ मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे, आगे देखें क्या है। चलें, हाँ, आगे एक बेसिक सी चीज है और हमें जानना ये जरूरी भी है।
ओके, अरब की 3 किस्में हैं, कोई रिपीट करने बोले हैं। अरब के 3 तबकात हैं। नंबर 1 अरब बाइदा। बाइदा का मतलब क्या होता है? हलका, अल अरबुल हालिका, यानी वो अरब जिसके नाम, जिसके नुकूश, जिसके नाम और निशान, जिनकी लिखी हुई चीजें हमारे पास न रहे और तारीख में उनका कोई भी तस्करा नहीं, सिर्फ नाम हल्का फुल्का है। उनमें आता है समूद और तस्म जदीस का नाम आता है अरब बाइदा का। दूसरी किस्म है अरब आरिबा। अरब आरिबा से मतलब यह है कि वो अरब जिनका ताल्लुक यमन से था और जिनका ताल्लुक यारूब बिन कहतान से था, और अरब अल आरिबा ही को हम कह सकते हैं अल कहतानी, जो कि यमन में रहते थे। और तीसरी किस्म है अल अरब अल मुस्तारिबा की। अरब अल मुस्तारिबा से मुराद ये है कि ये वो अरब हैं जो कि हिजाज में रहते थे, ठीक है और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और अरब अल मुस्तारिबा को हम अल अरब अल अदनानी बोल सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड, आई हैव रिपीटेड, ओके। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, हाँ, अब ये जो आगे चीजें हैं ये हैं बहुत बेसिक सी चीजें, लेकिन हमारे लिए स्टेट के लिए बेसिक नहीं, ये सब बहुत अहम है। बेसिक है लेकिन बहुत अहम है। क्या अगर ये बात करें कि तारीखुल अदबिल अरबी जो है, इनको कितने इसमें दौर में, असर में डिवाइड किया गया है, कितने जमानों में, तो 5 जमाने हैं, ठीक है। अहम 5 जमाना है। अल असरुल जाहिली, और दूसरा है असर सदरुल इस्लाम व दौलतुल उमविया, तीसरा है अल असर अल अब्बासी, चौथा है अल असर तुर्की, पांचवा है अल असर हदीस। अब इसके बारे में हमें ये जानना है कि अल असर जाहिली का आगाज कब से कहां तक हुआ, इस्लामी का कहां से कहां तक है, तो वो देख लीजिए। अल असर जाहिली की बात करें तो इसका जो आगाज हुआ है जबकि यमनी अदनानी लोग यमनी लोगों से आजाद हुए तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी में, तो उस सदी को बोलते हैं अल असरुल जाहिली, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब थोड़ा सा आप ये समझते होंगे आजाद हुए क्या मतलब, गुलाम थे क्या थे नहीं थे, थोड़ा सा रुक जाएं। हालांकि आगे इसके बारे में आएगा बहुत तफसील से, लेकिन समझ लें। असल में ये देखें, एक इस पे फोकस करें थोड़ा कि अरब कहतानी जो थे, अरब कहतानी जिसको बोलते हैं अरब यमनी, वो यमन में रहते थे और उसी को बोलते हैं अरब शमाली, नहीं जनूबी, ये जनूब में रहते थे। खैर वो सब छोड़ें, अब अभी आप इतना समझें कि अरब कहतानी जो थे ना, कहतानी वो यमन में रहते थे, ओके। और इनकी बादब्ता हुकूमत थी और इनकी एक तहजीब थी, बहुत तरक्की याफ्ता तहजीब थी कहतानियों की यमन। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी तहजीब, अपनी हुकूमत की वजह से इन्होंने जो है अदनानियों को, जो कि अदनानी कहाँ रहते थे, अदनानी रहते थे हिजाज में, अदनानियों पे इनका डोमिनेशन था कहतानी का। अदनानियों पे डोमिनेशन होने की वजह से कहतानी की, जाहिर सी बात है, जो कौम मगलूब हो और जो कौम गालिब हो, तो गालिब का सारा असर होता है मगलूब कौम पे। तो डोमिनेटेड कौम पे तो होता है असर, जिसका डोमिनेशन हो। तो कहतानी का सारा डोमिनेशन था इस पे, अदनानी पे, लुगत के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन एक ज़माना आया कि जब लोग हज करने लगे बहुत, और तकरीबन जब लोग हज करने लगे और अदनानी लोग काबे की वो लोग जिम्मेदार बन गए, ठीक है, और उनकी बहुत इज्जत होने लगी, और कहतानी लोगों की जो हुकूमत थी वो भी ख़त्म होने लगी। तो फिर क्या हुआ, जो अदनानी लोग थे यानी कि हिजाज के लोग, ये लोग उनसे आज़ाद हो, उनका डोमिनेशन ख़त्म हो गया कहतान का। तो उसी वक्त जो है, उसी वक्त से अल असरुल जाहिली का आगाज होता है, ठीक है। उसी वक्त से ये अल असरुल जाहिली का आगाज होता है। और अल असरुल जाहिली की बात करें तो उस वक्त से आगाज होकर के कब तक रहता है अल असरुल जाहिली का जमाना, जबकि इस्लाम आया उस वक्त तक, यानी कि 100 से 150 साल तक ही अल असरुल जाहिली हम कह सकते हैं।
पता नहीं ये मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया जो मैं बोलना चाहता हूँ, बताएं। ये वाला आपको समझ में आया? चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर बातें समझ में आ जाएगी, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके। तो खैर, तो चलें। अलअसरुल जाहिली जो है इसका आगाज हुआ तकरीबन वही 5वीं सदी के बिल्कुल बीच में, जबकि अदनानी लोग यमनी लोग से आज़ाद हो गए थे। और इसका अख्ताम कब हुआ अलअसरुल जाहिली का? वो 622 ईस्वी में। और दूसरी जो किस्म है, दूसरा जो ज़माना है तारीख़ अरबी का, वह है असर सदर इस्लाम व दौलत उमविया। तो इसका आगाज़ कब हुआ? इसका आगाज़ हुआ है इस्लाम जब आया उस वक्त से इसका आगाज़ हुआ। और ख़त्म कब हुआ? जबकि अब्बासी हुकूमत का क़याम अमल में आया। ये कब अमल में आया? 133 हिजरी में। और तीसरा जो दौर है वह है अल-असरुल अब्बासी। तो अल-असरुल अब्बासी जो दौर है उसका आगाज़ कब हुआ? जबकि ये अल-असरुल उमवी का इख्तिताम हो गया, सुकूत हुआ अल-असरुल उमवी का, तो उस वक्त से असर अब्बासी का आगाज़ हुआ। और ये चला कब तक? 656 तक। और चौथा जो दौर है वह है अल-असरुल तुर्की। अल-असरुल तुर्की ही का दूसरा नाम है असरुल इन्हितार। अल-असरुल तुर्की ही का दूसरा नाम क्या है? असरुल। देखिए आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट में लिख दें, मैं देख लूंगा। आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा इको हो रहा है और कट कट के कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख दें, मैं देख लेता हूँ। ओके। अल-असरुल तुर्की का दूसरा नाम है असरुल इन्हितात या असरुल तखल्लुफ। ठीक है। क्यों असरुल तखल्लुफ कहा जाता है अल-असरुल तुर्की को? इन्हितात का मतलब होता है बिल्कुल नीचे जाना, ठीक है, पीछे जाना। तो चूंकि इसमें अल-अदब अरबी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इसके अंदर इन्हितात आ गया, तो इसी वजह से अल-असरुल तुर्की ही का दूसरा नाम है असरुल इन्हितात। इसका आगाज कब हुआ? आगाज हुआ जबकि बगदाद यानी कि अब्बासी हुकूमत का खात्मा हुआ। और ये चला कब तक? चला ये नहदा हदीसा तक, यानी कि 1220 हिजरी तक। और फिर जो लास्ट दौर आता है अल-असरुल ये तारीख़ुल अदब अल-अरबी का, वो है अल-असरुल हदीस। हाँ ओके ओके, ओम जी किधर है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अल-असरुल हदीस है लास्ट, ओके। और इसका आगाज हुआ है जबकि मोहम्मद अली में वाली बने, और वो अब तक चल ही रहा है अल-असरुल हदीस। हाँ, किसी ने पूछा कि अल-असरुल उमवी कहाँ गया, तो असल में हसन ज़ियात ने जो है ना तारीख़ुल अदब अल-अरबी की, उन्होंने 5 किस्में की हैं, ठीक है। तो उसमें असर सदरुल इस्लाम यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के वहाँ तक अद-दौलतुल उमविया, दोनों को एक असर माना है हसन ज़ियात ने, ठीक है। हसन ज़ियात ने दोनों को एक असर माना है, तो इसी वजह से ये वो है। ठीक है, समझ में आ गया असर के बारे में? सर हम पहले एक बुक में पढ़ा तो वो से अलग हो गया सर, ये साल का डिफरेंस। क्या? हम एक बुक में पढ़ा जो प्री इस्लामी, वो 622 तक प्री इस्लामी, और इस्लामी 622 से शुरू हुआ 661 तक। 622 से शुरू हुआ 661 तक इस्लामी, और 661 से 750 वो उमैया,
750 से 1258 वो अब्बासी, तो वो से अलग हो गया सर ये। एक मिनट, आप जो वो कह रहे हैं कि अलसरुल जाहिली का आगाज ही हुआ है उसमें 622 में, ये कहना चाह रहे हैं आप? 622 साल तक असरुल जाहिली, वो ठीक है, हाँ, इसमें तो वो वो तो ठीक वही है, तो वो है। 622 है, वही वैसे है ये असरुल जाहिली। और इस्लामी हो असरुल इस्लामी, वो 622 से 661 तक। 661। वो 61 उमैया साल, युग है, हाँ। उमैया युग। ना उमैया नहीं, वो इस्लामी है 622 से वो 661 तक इस्लामी। और वो खत्म हुआ था वो 1200 जो है 85 तक हुआ था क्या सर? वो तो 1200 हाँ, 58 1258। 1258 सर। 58। हाँ सर, 58 58 58 कहाँ पढ़े 12 हैं? 1258। अच्छा, तो हो सकता हो कि मेरे पास जो बुक है असल में वो, चलिए मैं इसको देखूंगा और भी दूसरी बुक में, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगा। आपने कहाँ से पढ़ा है बताइए, आपके सामने कौन सा सोर्स है? हम बांग्ला बोझ से कुछ पढ़े हैं। तारिकुल अदबुल अरबी मेहदी हसन का जो एक उर्दू वो है सर, उसमें ये है इतिहास मुझे आगे वो पढ़े हैं। तारिकुल अदबुल अरबी हाँ डॉक्टर सर, मेहदी हसन तारिकुल का अदबुल अरबी है। मेहदी हसन का। जी जी, उसमें भी है। जी जी चलिए मैं जी। देख लूंगा इसको। 1285 है या 58 है, ठीक है, मेरे पास जो है वो 85 है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो इसको तहकीक कर लेंगे, ठीक है। तारीख अदबुल अरबी, तारीख इस्लामी दोनों अलग है कि एक है सर? नहीं नहीं, एक ही है। वो जो है इस्लामी हिसाब ही से वो बटा हुआ है। वो जो तकसीम हुई है तारीखुल अदबिल अरबी की, वो इस्लाम ही के हिसाब से तकसीम हुई है। जैसे कि अल-असरुल उमवी है, तो तारीख इस्लामी है, अब्बासी इस्लामी है, और ऐसे ही तुर्की है तो वो भी इस्लामी है, तो इसी हिसाब से तकसीम हुआ है, तो दोनों एक ही है। चलें, तो ये क्लियर हो गया। बैरकफ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो क्या कहते हैं, उमर फर्रुख की किताब, देखूं उसमें क्या लिखा है, 85 लिखा है या 58। हम लोग चलते हैं जब तक आ गए, ठीक। ऐसे यस सर। या एक मिनट रुकिए। आगे से अरबी जबान की बात करें तो अरबी जबान जो है, अगर ये देखें कि उसके जो लैंग्वेज के हिसाब से अगर उसको कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी होंगे, एक होगा लुगत शमाल, दूसरा होगा लुगत जुनूब। यहाँ पे रुक जाएं आप थोड़ा सा। आप हम दो कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, एक कहतान, दूसरा अदनान, ठीक है। चले आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी फौरन। ये जो कहतानी अरब थे, अभी आपके सामने गुजर चुका है, ये लोग कहाँ रहते थे? यमन यमन। में। और अदनानी अरब कहाँ रहते थे? हिजाज में, ठीक है। हिजाज। और कहतान को अगर हम इसके हिसाब से देखें, सिमत के हिसाब से डायरेक्ट, तो ये कहाँ है? जनूब में, दक्षिण जिसको बोलते हैं हिजाज, ठीक है। और अदनान को अगर हम देखें, अदनानी अरब को डायरेक्शन कहाँ है? यह है शमाल में, ठीक है। तो हम गोया के कहतानी को बोल सकते हैं अल कहतानी, अल यमनी, अल जनूबी, और अदनान ही को बोल सकते हैं अल अदनानी और अल शमाली, अल हिजाजी। अब लुगत की बात करें तो अब आइए मेन पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बोलते हैं ना एक मियाँ के तीन तीन नाम, फजला, फजलू, फजलुर रहमान, बस वही मामला है। कहतान के तीन नाम, कहतानी, यमनी, जनूबी। अदनान के तीन नाम, अदनानी, शमाली और हिजाजी भी बोल सकते हैं, ठीक है।
تو اب اگر عربی لینگویج کی بات کریں تو اس کا جو ہے لینگویج کے حساب سے اگر کیٹیگرائز کریں تو وہ دو قسمیں ہوں گی. ایک ہوگا اللغہ القحطانیہ. تو یہ کون سی لغہ ہے؟ جو کہ قحطان بولتے ہیں. تو اسی کا دوسرا نام ہوگا اللغہ الیمنی، اسی کا نام ہوگا اللغہ الجنوبیہ. دوسرا ہوگا اللغہ عدنانیہ، یہ وہ جو کہ عدنانی لوگ بولتے ہیں. اسی کا دوسرا نام ہوگا لغہ شمالیہ. ٹھیک ہے، لغہ عدنانیہ. سمجھ میں آ گیا آپ یہ فرق میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے لغہ جنوبیہ تو آپ سمجھ جائیں گے قحطانیہ ہے. لغہ شمالیہ تو آپ سمجھ جائیں گے لغہ عدنانیہ. خیر، یہ ڈائگرام کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ وہ کلیئر ہو گیا. پھر اب یہ پڑھیں گے تو بس سب سمجھ میں آ جائے گا. بتائیں. اوکے. جی جی اب دیکھیں، اب اگر ہم عربی زبان کی بات کریں تو عربی زبان اس کے لہجے کے حساب سے اس کو کیٹیگرائز کریں تو دو کیٹیگری میں آئے گا. اصل ایک لغت الشمال ہوگا اور دوسرا لغت الجنوب ہوگا. لغت الشمال کا دوسرا نام لغہ عدنانیہ ہوگا، لغت الجنوب کا دوسرا نام لغہ قحطانیہ ہوگا. ان دونوں میں جو ہے بہت زیادہ فرق تھا، لغت الشمال میں لغت الجنوب میں. اوکے، شمال اور جنوب میں بہت زیادہ فرق تھا. چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ یہ بتائیں، کمنٹ میں بتائیں جلدی سے. لغت الشمال کی اگر بات کریں تو اس کے بولنے والے کون تھے؟ قحطانی یا عدنانی؟ جلدی سے بتائیں، کمنٹ کریں. عدنانی. عدنانی. اچھا، لغہ عدنانی یمنیہ ہونا. کا بولنے والے کون تھے؟ قحطانی یا عدنانی؟ قحطانی. 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 واہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے جو ہے سب ایزی ہے، سب آسان سے سمجھ میں آ جائے گا. ہاں، تو ان دونوں لغت میں، لغت الشمال لغت الجنوب میں بہت زیادہ فرق تھا ضمائر میں اور اشتقاق میں، تصریف میں. اسی وجہ سے عمرو بن علالہ نے کہا ہے ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغاتنا. یعنی کہ ہمیر کس کو بولتے ہیں؟ ہمیر ہی بولتے ہیں ان کو، قحطانیہ کو، کہ ہمیر کی جو زبان ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، اور ان کی جو لغت ہے وہ ہماری لغت نہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. اور یہ والا قول یاد رکھیں کس نے بولا ہے. یہ عموماً پوچھ لیا جاتا ہے کہ من قال ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا. یہ بہت مشہور کوٹیشن ہے. کس نے کہا؟ تو آپ بتائیں گے عمرو بن علالہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کیا تھے؟ الگ تھے. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے سے چونکہ الگ تھے، اور پھر جو ہے شمال میں رہتے تھے عدنانی لوگ، اور شمال میں بھی ان کی ایک الگ ہی طاقت تھی. تو دونوں میں جو ایک سیاسی تعلقات تھے، کوئی کسی پر غلبہ نہیں تھا. لیکن جب یہ چھٹی صدی عیسوی کا دور آیا تو پھر اس وقت ہوا یہ کہ جو یمن میں جو حکومت تھی اس کے قحطانیوں کی، وہ ختم ہونے لگی. اور پھر عرب میں جو عدنانی لوگ تھے، ٹھیک ہے، حجاز میں، شمال میں، ان کو موقع ملنے لگے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، کہ روم حبشہ وغیرہ سے ملنے لگے. اور یہاں پہ مارکیٹ اسواق کی وجہ سے لوگ جمع ہونے لگے، حج کی وجہ سے لوگ ان کی مدد کرنے لگے. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ. اور دوسری چیز ایک اسلام بھی آ گیا. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ عدنانی لینگویج جو ہے قحطانی لینگویج پہ غلبہ پا گیا، اور پھر جو قحطانی لینگویج کے جتنے لہجے تھے وہ سب کے سب مٹ گئے. اور پھر جو ہے صرف اور صرف عدنانی لینگویج ان کا لہجہ باقی رہ گیا، انہی لہجہ میں گفتگو وغیرہ سب ہونے لگی. تو یہ ایک وہ تاریخی پس منظر ہے، اس کو یاد رکھیں. چلیں، تو ہم لوگوں نے اتنا پڑھ لیا لغت کے بارے میں، کہ عرب کون ہیں، کہاں سے آئے، اور ان کے لینگویج کیا ہے، عدنانی قحطانی کتنی قسمیں، وہ سب پڑھ لیا. اب بات یہ ہوگی کہ جو العصر الجاہلی ہے، تو عصر الجاہلی میں نثر کی کتنی قسمیں ہوتی تھی، شعر کی کتنی قسمیں ہوتی تھی. نثر کی بات کریں تو آپ نثر کے بارے میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں.
नस्र में जो मैंने पढ़ाया था यहीं से पढ़ाया था, तो इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। बताएं, रिपीटेशन करने की तो ज़रूरत नहीं है ना? सर रिपीटेशन कर दीजिए थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कर दीजिए सर रिपीट। अच्छा चलिए कर देते हैं। अब नस्र की बात करें अल-असरुल जाहिली में, तो सबसे पहले हम ये समझें कि नस्र जो है वो होता क्या है। नस्र होता है ये कि अल कलाम अल्लज़ी तहर्ररा मिन अल काफियती वल वज़न, वो कलाम जो कि काफिया और वज़न से खाली हो उसको क्या बोलते हैं? नस्र बोलते हैं। वो सब पढ़ चुके हैं, अब लोगों के ज़हन में एकदम आते जाएगा बहुत अच्छे से। उसको बोलते हैं नस्र। और नस्र की दो किस्में हैं, एक होता है नस्र मुसज्जा और एक होता है नस्र मुरसल। नस्र मुसज्जा किसको बोलते हैं कि इंसान एक या दो या तीन जुमला बोले तो हर जुमला के आखिर में काफिये का ध्यान रखे, हर जुमले को एक ही काफिये एक ही वजन पे खत्म करे, तो उसको बोलते हैं नस्र मुसज्जा। और एक होता है नस्र मुरसल। मुरसल मतलब होता है छोड़ दिया जाना, यानी कि उसको मुसज्जा से छोड़ दिया गया। तो ये किसको बोलते हैं? नस्र मुरसल, जिसमें कि हर जुमले पे वो काफिये का वजन का ख्याल ना रखा जाए, तो उसको बोलते हैं नस्र मुरसल। अब अगर इसकी बात करें कि इसमें असर जाहिली में नस्र की कितनी किस्में थी, ये सब सवाल आ जाएगा। तो आप बताएंगे असर जाहिली में नस्र की कई किस्में थी, उनमें से कौन कौन से हैं? अमसाल हैं, हिकम हैं, वसाया हैं, खुतब हैं और उकसूसा भी हैं, वस्ता भी हैं। ये सब नस्र जाहिली की अहम किस्में हैं। तो अब इसको आप याद रखेंगे नस्र जाहिली की कौन कौन सी किस्में हैं। चलें अब चलते हैं, मसल किसको बोलते हैं? मसल किसको बोलते हैं? तो मसल के बारे में सीधी सी चीज आप ये समझें कि मसल पे जो है ना बहुत अच्छा से मैंने एमसीक्यूज भी डाला है, जो लोग वो ज्वाइन किए हुए होंगे उससे समझ में आ जाएगा, बाद में मैं दूंगा भी आप लोगों को। मसल ये होता है कि कोई एक हादसा पेश आया, ठीक है, उस वक्त उसी हादसे के तनाजुर में, उसी कंटेक्स्ट में एक बात कही गई, ठीक है, या कोई जुमला। अब उसी जुमले को इसी तरह का कोई भी वाकया पेश आ रहा है तो हू बहू वही जुमला वही बात नकल की जा रही है, तो उसको बोलते हैं मसल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, या वाफक शन्नुन तबका, ठीक है, और इसका एग्जांपल आगे देखेंगे आप। जैसे वो एग्जांपल था कि इन्नका ला तजनी मिन अश-शौकिल अनाबा, इन्नका ला तजनी मिन अश-शौकिल अनाबा, ठीक है। तो ये जो है किसी एक वाक़ये पर कहा गया, इन्नका ला तजनी मिन अश-शौकिल अनाबा। अब जब भी इस तरह का हादसा पेश आता है तो इंसान ये बोलता है कि इन्नका ला तजनी मिन अश-शौकिल अनाबा, तो इसको बोलते हैं मसल। और मसल में एक अहम चीज़ ये है कि मसल की को जिसने जमा किया है उनमें एक अहम नाम है मजमाउल अमसाल, जो मैदानी की है, इसने मसल जमा भी किया है और मसल की तशरीह भी की है। और असर जाहिली की नस्र की एक दूसरी किस्म है हिकमत। हिकमत किसको बोलते हैं? हिकमत ये होता है इंसान बहुत ही तजुर्बे से इंसान एक बात कहे जो बहुत ही अच्छी बात हो और बिल्कुल परफेक्ट बात हो और उसके अंदर अल्फाज भी ज़्यादा ना हो, अल्फाज उसके अंदर ज़्यादा ना हो, तो उसको बोलते हैं हिकमत। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, अलखता ज़ादुल अजूल, के गलती करना ये एक जल्दबाज इंसान की ज़्यादा राह है, ठीक है, यानी कि उसका घटिया बिस्तर है, उसके रहने सहने के सामान है गलती करना। तो ये एक तजुर्बे से एक बात कही गई और जो बहुत ही अहम और अच्छी बात है। उसके बाद आ जाते हैं असर जाहिली में एक चीज़ है खुतबा और वसीयत। तो खुतबा वसीयत क्या होता है? खुतबा वसीयत दोनों बोलते हैं इस चीज़ को कि ऐसी बात कि ऐसा कलाम कि जिससे कि नफ़ा देने वाली चीज़ की रग़बत दिलाया जाए और जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है उससे रोका जाए, तो इसको बोलते हैं खुतबा और वसीयत। लेकिन दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क ये कि खुतबा जो होता है एक बड़ी महफिल में दिया जाता है और वसीयत जो होता है वो कुछ अपने ख़ास लोगों को कहा जाता है, बहुत ही बड़ी महफिल में नहीं की जाती। दोनों में फ़र्क ये है। तो
یہ ساری چیزیں نثر کے بارے میں پڑھ لیے. چلے ہم لوگ آج اتنا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک.